You very much. Uh, I welcome everyone and I'm thankful to the organizers that they have invited me. First of all, I may be permitted to read my latest paper which I have prepared for this purpose only, for this meeting only, that is in English. Later on, I will try to explain it in Hindi also. If you will permit, I will place that. I may be permitted to place that. Our constitution is based on three fundamentals which form the core of constitutionalism. Number one, a written constitution, a chapter on fundamental rights, number two, and number three, limited government. Now, despite the above prophetic words, the constitutional provisions to protect the rights of ordinary poor citizens, the governments are openly flouting the laws. In many cases, successive governments have failed to prevent local officials, private actors from abusing laws criminalizing expression to harass individuals expressing minority views or to protect such persons against violent attacks by extremist groups. Too often, the government succumb to interest groups and non-state actors who are politically motivated, who are having politically motivated reasons, say they are offended by a certain book, a film, or a work of art, and now they have gone too low when they bring together reasons to protect rapists, which you have seen in Hathras, in Kashmir, and in so many places. The authorities then justify restrictions on expression as necessary to protect public order, citing risk of violent protest and communal violence. In a recent case of cow slaughter, which अभी जो हमारे भाई ने रखा काउ स्लॉटर के बारे में क्या हुआ, जो जजमेंट के बारे में कहा उसके ऊपर, in a recent case of cow slaughter, the Allahabad High Court found the lopsided, archaic, and narrow-minded attitude as a public example of misuse of power. Justice Siddharth of Allahabad High Court observed too harshly against the UP government's handling of such cases. The judge observed the act is being misused against innocent persons meet whenever any meat is recovered. It is normally shown as cow meat, beef, without getting it examined or analyzed by the forensic laboratory. In most of the cases, meat is not sent for analysis. Accused persons continue in jail for an offense that may not have been committed at all. The non-milking cows and other old cows, they are left to wander on the roads. In another landmark judgment, in Kafil case, what High Court had said, the division bench headed by the Chief Justice, in landmark judgment of Dr. Kafil Khan of Gorakhpur, Chief Justice of Allahabad High Court had observed, neither detention of Dr. Kafil under the National Security Act nor extension of the detention are sustainable in the eyes of law. His speech also deprecates any kind of violence. It appears that the district magistrate had selective reading and selective mention for few phrases from the speech, ignoring its true intent. Prima facie, the speech is not such that a reasonable man could have arrived at a conclusion as the inference drawn by the district magistrate Aligarh. Thereafter, this Bombay High Court judgment in which this Jamaati issue was raised, I have referred that. नकवी साहब एक बार आपसे अनुरोध है कि हिंदी में ये जो पेपर है, ये पेपर इंग्लिश में था, मैं अभी थोड़ा सा आप वक्त दे कुछ ट्राई करूंगा कि इसको आपको एक्सप्लेन हिंदी में भी कर दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश व्यूवर्स भी हैं आपके पास, तो उनको भी आसानी हो जाएगी सुनने में और उनके लिए भी हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी पर्पस के लिए, अगर आप परमिट करें। फरमान साहब एक्चुअली इंग्लिश व्यूवर है, 2-3 ही है। अच्छा। और उनका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ज्यादा नहीं है। हाँ। और 100 से ऊपर जो साथी है उसमें से 110 साथी हिंदी वाचक है। ओके। और इंग्लिश टू हिंदी करने वाला कोई नहीं है, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। तो वो लोग, हम लोगों को चैट बॉक्स में सब लोग कह रहे हैं, तो आपको प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप तो ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो जजमेंट था, जिसमें जमाती वाला इशू रेज किया गया और जिसमें जमातियों को ये बताया गया कि साहब कोरोना के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल जमाती है, उसके ऊपर भी बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बहुत स्ट्रिक्ट रिमार्क्स पास किए। यहाँ तक कि मीडिया के कवरेज को भी उन्होंने
बहुत सख्ती से ऑब्जर्व किया कि साहब ये सब मीडिया ने भी उसको बहुत जहर फैलाया उसके उस जजमेंट को। क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि लॉ को किस तरह से मिसयूज करके ये गवर्नमेंट्स अलग अलग जगहों पे, इसी तरह से आपने देखा होगा कि यूपी में या जहां पर भी सीए एनआरसी वाले इश्यूज रेज हुए, वहां पे इन्होंने हर जगह 188 सेक्शन 188 आईपीसी का इस्तेमाल किया। इसके ऊपर लेटेस्ट अभी झारखंड हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उन्होंने 188 की एफआईआर थी उसको क्वैश किया, और ये जज साहब ने कहा, जज साहब का नाम है जस्टिस जी के इलानथ्रियन, उन्होंने ये कहा कि ये जो 188 का यूज हो रहा है ये यूज पुलिस कर ही नहीं सकती, इसलिए कि ये परमिसिबल नहीं है अनलेस कि कंप्लेंट फाइल करे जिस आदमी को ग्रीवांस है, या पुलिस जो है वो कंप्लेंट फाइल करे, डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकते। वो एफआईआर भी उन्होंने कोश कर दिया। उसके बावजूद भी हर जगह 188 की एफआईआर, और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि एकदम से झारखंड हाईकोर्ट ने इसको पढ़ा और पहले दिन ये चीज आ गई। ये सब चीजें किताबों में, सीआरपीसी में, प्रोसीजरल लॉ में प्रोवाइडेड है कि कैसे किसी केस की एफआईआर कौन लिखा सकता है और कैसे कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कौन एफआईआर लिखा सकता है, एफआईआर लिखाने का क्या तरीका होगा। इन सब के बावजूद ये गवर्नमेंट जो है लॉ को मिसयूज करते हुए अब तो एफआईआर लिख गई, अब आपको कोर्ट में जाना ही जाना, वहां जाके बताइएगा 20 साल लगेगा, 15-20 साल बाद ये तय होगा, करे ये तो एफआईआर गलत लिख गई, ये तो इनको लिखाना नहीं था, इसमें तो कंप्लेंट फाइल होनी थी, ये क्या हुआ। लेकिन उस आदमी का तो पूरी लाइफ चौपट हो गई, 15-20 साल, 10 साल, 5 साल जो भी निकल गया वो उसमें निकल गया। अभी राजीव ने बहुत डिटेल में रखा यूपी स्पेशल फोर्सेस एक्ट जो एक बनाया इन्होंने, उसके बारे में, तो उसमें भी आप देखिए कि क्या है। वो भी मैं तो कहूंगा कि वो तो एक तरह से जैसे जर्मनी में हिटलर के पीरियड में गेस्टापो उनकी जो सीक्रेट एजेंसी थी कि वो जब चाहे जिसको चाहे जहां से चाहे उठा ले, बिल्कुल वही वाला आपको रिमाइंड हो जाएगा जब आप उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे और इनके एक्ट को पढ़ेंगे। इसमें एक दरोगा है, उस दरोगा को ये पावर है कि वो अगर किसी को ये समझता है कि साहब हम ये आदमी ने कुछ गलत काम किया है, तो उसका वो सेटिस्फैक्शन, वही सेटिस्फैक्शन जो है उस आदमी को अरेस्ट करने के लिए काफी है। उसको किसी कोर्ट से कोई वारंट नहीं लेना, कहीं कोई एफआईआर नहीं लिखानी, किसी तरह की कोई बात, जाएंगे उस आदमी को घर से उठा लेंगे और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब वो चाहेंगे तब वो प्रोड्यूस करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो ये जो एनएसए का तो एक प्रोसीजर है कि एनएसए में तो आपको पता है कि ये इलीगली डिटेन किए गए हैं, वो आदमी हैबियस कॉर्पस करके निकाल सकता है, लेकिन यहाँ तो उसका पता ही ना चलेगा किस थाने में कहाँ ले जा करके, कानपुर से पकड़ा उसको ले जाके मुजफ्फरनगर में बंद कर दिया, आप ढूंढते रहिए, घर वाले उसको ढूंढते रहेंगे। दरोगा जी का सेटिस्फेक्शन इज इनफ, और उस दरोगा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई कोर्ट इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो ये पूरा का पूरा जो है इनका पूरा मैकेनिज्म यूपी गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है कि लॉ को यूज करके अनलॉफुल एक्टिविटीज की जाए। ये एक नया फिनोमेना जो हमारे यहाँ उठा है, अभी तीस्तानी जी ने उसको थोड़ा हल्का से टच किया, राजीव ने भी टच किया कि लॉ को यूज करके अनलॉफुल एक्टिविटीज करने का एक नया फिनोमेनन हमारे कंट्री में उभर के सामने आया है। ये कानून बना देंगे, जैसे रिकवरी वाला कानून बना दिया, उसमें एक ट्रिब्यूनल बना दिया, उसके रिकवरी वाले कानून आने के पहले जो भी रिकवरी के ऑर्डर्स हो चुके थे उसको सेक्शन 22 में जस्टिफाई कर दिया कि साहब वो सब अब जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमने, और आज रिकवरी हो रही है तो अब ये नए वाले कानून के तहत हो रही है। और अभी ट्रिब्यूनल बनाने, ट्रिब्यूनल को तय करना है कि साहब ये रिकवरी हो सकती है कि नहीं, ट्रिब्यूनल आपने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, रूल्स बने नहीं, रेगुलेशंस बने नहीं, ये सब मैटर हाईकोर्ट के सामने अंडर चैलेंज। दूसरा एक थर्ड एस्पेक्ट है जो काउ स्लॉटर के ऊपर अभी बात उठाई हमारे मुजफ्फरनगर के दोस्त ने, उसमें आपको याद होगा अखलाक का केस पहला केस था जिसमें इस तरह की हरकत शुरू हुई कि मॉब लिंचिंग वाला, कि लोग जा करके किसी को भी कहीं पर भी मार दें, ये कहते हुए कि साहब गाय का गोश्त ये रखे हुए। उस तरह से उनके यहाँ भी अटैक हुआ ईद के दिन, बकरीद का दिन था, उसके दिन रात में उनके यहाँ अटैक हुआ और ये कहा गया कि साहब ये गाय का गोश्त इनके यहाँ रखा हुआ था। वो साहब फ्रिज से गोश्त पक्का हुआ निकला, उनको ऊपर कोठे पे से ले आए, ला करके मारना शुरू कर दिया और
बहरहाल उसको जी भर के मारा, पूरा घर का सामान तोड़ दिया, जो भी हुआ। उसके घर से 150 मीटर या 200 मीटर की दूरी के ऊपर एक बोरी में कुछ गोश्त बरामद कर लिया पुलिस ने उसी दिन रात। वो गोश्त, ये कहा गया कि साहब यही गाय का गोश्त है जो इनके घर में था, और ये था वो था। उसको उसने भेज दिया फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए गाजियाबाद में फॉरेंसिक लैब में। वहां से रिपोर्ट आ गई कि साहब ये बकरी का गोश्त है। इस रिपोर्ट के बाद भी बहरहाल वो सब अपना चलता रहा, लेकिन वो आदमी इस बीच में अखलाक मर गए, उनकी फैमिली अपना टूट फूट गई, जो कुछ भी हुआ। अब अखलाक की फैमिली के खिलाफ 1 साल बाद जो मुल्जिमान थे उन्होंने एक FIR लिखा दी कि साहब ये जो गोश्त इनके यहाँ से बरामद हुआ था ये गाय का गोश्त था। उसका बेसिस क्या था अब इस FIR का, कि वो जो फॉरेंसिक लैब के जो गोश्त भेजा गया था जिस दिन रात में रिकवर हुआ था उनके यहाँ से, वो एक बोरी जिसको फॉरेंसिक लैब गाजियाबाद ने कहा था कि बकरी का गोश्त है, वो गोश्त भेजा गया था मथुरा की फॉरेंसिक लैब में, और वहां से साल भर बाद एक रिपोर्ट आती है कि ये गाय का गोश्त है, और उस बेसिस पे अब ये रिपोर्ट लिख गई। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो गोश्त 1 साल पहले रिकवर हुआ था वो बकरी का गोश्त था, वो साल भर बाद गाय का गोश्त बन सकता है, रिकवरी वही है। किस तरह से मिसयूज किया है यूपी गवर्नमेंट ने लॉज को और इनकी पुलिस ने लॉज को, ये आपको अंदाजा नहीं हो सकता जब तक कि आप ग्राउंड पे जा करके इन लोगों के पेपर्स के एक एक माइन्यूट डिटेल्स न देखें। माइन्यूट डिटेल्स देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल एकदम कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन फिर भी पुलिस, इसलिए कि गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरी तरह से मिला हुआ है। ये तो इधर एक हम लोगों के हाई कोर्ट और कुछ और कोर्ट्स ने एक वीव लेना शुरू किया कि नहीं साहब अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। अब जो कोर्ट्स का वीव्स आ रहे हैं वो आपको खुद आपके सामने है कि किस तरह से कोर्ट्स इनके खिलाफ वीव्स ले रही हैं। सिर्फ कोर्ट ही एक जो फोरम है जहां से इन लोगों को जो इस तरह से झूठे फंसाए जाते हैं उनके पास से उनको रिलीफ मिल रही है, लिमिटेड लेवल पे ही लेकिन मिल रही। लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं कह सकते कि कोर्ट्स ही खाली इनके एक बचाने में आगे आ रही है। और जो ग्रुप्स हैं, खासतौर से आप लोगों का ग्रुप या और जो इस तरह के NGOs या प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो वर्क कर रहे हैं, वो ट्रेमेंडस वर्क है और उनकी सर्विसेज को जितना भी सराहा जाए कम है, इसलिए कि वो लोग अपनी जान जोखिम डाल करके, जान को जोखिम में, जान को खतरे में डाल के, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी फैमिलीज, अपना पैसा लगा करके इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उनको तो जितना भी सराहा जाए कम है। साथ ही साथ जो अदालतें जिस तरह से हम लोगों के इस एस्पेक्ट को उठा रही हैं, अब जैसे अभी काउ स्लॉटर के ऊपर जजमेंट आया हाई कोर्ट का, उसके बाद इसी तरह से और बहुत से केसेस में कोर्ट्स जो हैं वीव ले रही हैं। जैसे अभी मुहर्रम के प्रोसेशन बनारस में नहीं उठने दिया जा रहा था, उसमें भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको तो बिल्कुल जब कुछ नहीं, अब तो ये सब आपने जब खोल दिया तो सिर्फ इसको क्यों टारगेट करके रोक रहे हैं, बाकी सब जगह आप खोल दे रहे हैं। उसमें भी किया कोर्ट ने, इंटरफियर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इस तरह से और भी केसेस में हेल्प कर रही है कोर्ट, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं इन सम एंड सब्सटेंस हमारा कहना यह है कि कानून को मिसयूज करके सारी गैर कानूनी एक्टिविटीज की जा रही हैं। ये एक नया फिनोमेना है। इससे लड़ने के लिए आपके फोरम को या आपके जैसे लोगों को एक नई स्ट्रेटेजी के साथ सामने आना पड़ेगा। इसलिए ये फिनोमेना नया फिनोमेना, आप अभी तक खाली गैर कानूनी एक्टिविटीज को या कोई गैर कानूनी ऑर्डर हो गया उसको चैलेंज करते रहे, उसके खिलाफ आवाज उठा देता है, लेकिन अब आपको इन गैर कानूनी कानूनों के ऊपर भी आवाज उठानी है। इसके लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना होगा, इसलिए कि फ्यूचर आपको वहीं पे ला करके खड़ा करने वाले हैं, जैसे गेस्टापो के सामने यहूदी लोग लाके खड़े कर दिए गए थे। थैंक यू।